آج کی جو گفتگو ہوگی وہ کسی ایک طرح کا پوڈ کاسٹ نہیں ہوگا، ایک طرح کا مکالمہ ہوگا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں علماء کا پوائنٹ آف ویو کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ کیا سوچتا ہے تجسیم کے حوالے سے اور فلسفے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ہم وومن ایجوکیشن اینڈ وومن آپریشن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، جو کہ آج کل بہت وائرل ٹاپک ہے۔ تو جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ سعد امجد صاحب۔ حضرت، پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ وومن آپریشن جو ہے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کو علماء کنڈیم کرتے ہیں صرف، لیکن جس طریقے سے گستاخ صحابہ کے لیے نکلتے ہیں وہ، اور گستاخ صحابہ کا بل امپلیمنٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور باقی معاملات کے لیے نکلتے ہیں، اس معاملات میں جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس معاملات میں وہ کیوں نہیں باہر آتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور ذرا آپ یہ بتائیے کہ اسلام کتنا ایک وومن کو امپاور کرتا ہے، وومن ایجوکیشن کو اور وومن آپریشن کو کتنا کنڈیم کرتا ہے، کیا حساب ہے؟ آپ اس کو ذرا ڈسکس کریں۔ جو خواتین کے حقوق ہیں نا، جس کو حقوق نسواء کہا جاتا ہے، اسلام اس کو کبھی بھی اوپریس نہیں کرتا یا دباتا نہیں، بلکہ مذہبی جتنی آزادی دی گئی ہے خواتین کو، وہ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں نا کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو خواتین چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اوپریس کیا جا رہا ہے اور ہمیں آزادی دی جائے، تو جتنی مذہب نے آزادی دے دی ہے نا، تو یہ ایک عورت کے لیے، اس کے تحفظات کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے یہ کافی اور شافی ہے۔ اب اس سے جو زائد خواتین جو ہے نا وہ حقوق مانگتی ہیں نا، پہلی بات تو یہ، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حقوق ہوتے کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، کہاں تک اس کو لمیٹڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اگر لمٹ میں رہتی ہے نا تو پھر ہی وہ درست رہتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر انسان کے جسم میں کوئی مادہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ضرورت کے تحت رکھا ہے، وہ بڑھ جائے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کا بھی قتل ہو جاتا ہے، اس وقت وہ زہر والی سوسائٹی بن جاتی ہے، زہریلی ہو جاتی ہے، جب کسی بھی چیز کو اس کی لمٹ سے زیادہ کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے۔ ہاں، کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے تو مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی اوپریس نہیں کرتا خاتون کو، بلکہ اس کو تحفظات فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو تحفظات میں رکھو، کیونکہ نازک چیز ہے اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس نے اگلی نسل، اگلی پود کو پیدا کرنا ہے، اور سوسائٹی اس عورت سے بننی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نسل چلنی ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کی حفاظت نہیں ہوگی، سوسائٹی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سروائیو نہیں کر پائے گی۔ دوسری یہ تو ہوگی حقوق کی لمیٹیشن کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لمیٹیشنز نہیں چاہیے، مجھے لمیٹڈ کیوں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو بنایا نا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس کو لمیٹڈ کیا جائے گا تو پھر یہ بہتر ہے۔ مرد کی بھی لمیٹیشنز ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد کی لمیٹیشنز نہیں ہے، اپنی بصیرت، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا اور اپنے جو شہوات ہیں اس کو دبا کے رکھنا، اور بہت ساری لمیٹیشنز مرد کے لیے بھی، صرف عورت کے لیے ہی نہیں ہے۔ صرف عورت کے معاملات کو اس لیے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کیونکہ جو عورت ان حقوق کو لمیٹڈ کرنا نہیں چاہتی اور وہ آگے جانا چاہتی ہے، اس کے پیچھے غیر مسلم ایجنڈے ہیں۔ غیر مسلم ایجنڈے یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ جو یورپینز این جی اوز ہیں جو پاکستان میں سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر فنڈنگ کرتے ہیں ایسی خواتین کو جو کہ نان ریلیجیس ہوتی ہیں، ان کو دین کے بارے میں ٹکے کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ان کو کیا فائدہ ہے جو فنڈنگ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں فائدہ؟ ان کو یہ فائدہ ہے، اب دیکھیں نا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب انہوں نے ٹل مار لیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو جنگوں کے ذریعے سے نہیں ہرا سکتے، ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں انہوں نے پھر یہ بات سمجھ لی کہ جب تک ہم ان کے دین میں تخریب کاری نہیں پیدا کریں گے نا، تب تک ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان میں صلاح الدین ایوبی؟ یہاں پر تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایل سی ڈی سے، کیمروں سے، ہر جگہ سے امریکہ واچ کر رہا ہے، یورپ واچ دیکھ رہا ہے ہمیں کہ یہ کچھ جو ہے نا وہ ان کو ہم نظر میں رکھیں اپنی، جیسے ہم کوئی بہت بڑی نیو ٹیکنالوجی لانچ کر دیں گے اور وہ کوئی جو ہے نا وہ فوراً اس کو کاپی کر کے اپنی طرف پہلے لانچ کر لیں، تو ہمیں تو صحیح طریقے سے تسمے باندھنے نہیں آتے۔ سو یہ اس طرح کی جو irrational باتیں ہمارے لوگ کرتے ہیں، irrational نہیں ہے، میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو کام ہوا ہے نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی مساجد میں آ کے یہود و نصارہ نے امامت کروانا شروع کر دی اور ان کے دین میں تبدیلی لانا شروع کر دی۔ اب وہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، خواتین بھی آتی، خواتین کا وہاں سے ذہن تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ بندے پکڑے جا کے مسجدوں میں کہ جو داڑیاں رکھ کے اور اس طرح کی امامت کروا رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی بات ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ ادھر صلاح الدین ایوبی نہیں ہے یا ہمیں تو صحیح طرح سے تسمے باندھنے نہیں آتے،
تو یہ بات آپ سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی اصل میں حقیقت کیا ہے، پاکستان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. اگر آپ جغرافیائی طور پر پاکستان کا محلِ وقوع دیکھتے ہیں تو پاکستان کو سونے کی چڑیا کیوں کہا جاتا ہے؟ پنج آب اور دیگر معدنیات ہر چیز یہاں پہ موجود ہے پاکستان میں، اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں. افغانستان تک جب جہاد ہوا ہے تو وہ پاکستان میں آنا چاہتے تھے نا، جی اصل جی جی مقاصد تو یہ تھا نا. وہ جی جی کیوں آنا چاہتے تھے؟ ان کو تو تسمے نہیں باندھنے آتے، تو پھر ان سے کیا لینا تھا انہوں نے؟ انہوں نے ان کی زمین کے وسائل استعمال کرنے تھے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہوں، اب میری بات سنیں نا. دیکھیں فرسٹ آف آل آپ یہ بات سمجھیں کہ ان چیزوں کا وومن فریڈم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے نا، میں وہی اب دیکھیں نا ڈسکس کرنے لگا ہوں، وہی تھوڑی ڈسکس سی کرنے لگا مجھے ٹائم ہوں. دیجیے این گا. جی اوز جب چلیں ٹھیک ہے، یہ وومن فریڈم پہ ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تعلق ہے، چیزوں کا میں بھی تعلق جی بتاؤں گا جی آپ جی کو. جی میں اپنا موقع رکھتا ہوں کہ ان کا مجھے نہیں لگتا کہ اپنا وومن فریڈم کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہوگا. یہ چیزیں ہوتی ہیں ورلڈ پالیٹکس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر ہوگا بھی تو وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، اوپر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول میں کریں گے. جیسے کیسے ہے ہمارے یہاں بیوروکریسی ہماری کدھر ہے؟ سارا کا سارا ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ جاگیردار طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ جو کنٹرول کرتا ہے. اور یہی طبقہ جو ہے کدھر سے کنٹرول ہوتا ہے؟ ویسٹ سے. وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. ہماری بلوچستان کے معدنیات جو ہیں، جو کروڑوں کے معدنیات ہیں، وہ حامد میر صاحب نے بھی اس کو دکھایا، جو کہ یہاں سے بلیک میں باہر بھیجے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی ڈالر لیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا کہ یہ جو فورن ایجنڈاز ہیں، یہ ایل جی بی ٹی کیو یا دوسرے معاملات، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو ایک آدھا بات. لیکن اس میں یہ ان کا پیچھے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے ان کا موقف یا ان کا اپنا جو ارادہ ہے وہ یہ ہو کہ ہم جو ہے ان پہ مسلمانوں پہ قابض ہو جائیں، مسلمان بڑے عروج پہ آ جائیں گے اور یہ اور وہ. میرے خیال سے وہ جس طریقے سے ایک ہمدردی ہوتی ہے نا ایک انسان کو، مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ جس طریقے سے فلسطین ہے تو اس کو غیر مسلم بھی اس کا درد لے رہے ہیں، تو وہ نان مسلم ہم مسلمس کا درد اپنے طور پہ لے رہے ہیں کہ جی یہاں پر وومنس کو فریڈم ملے. پر ان کو نہیں پتا کہ ہماری ریلیجس پریکٹس کیا کہتی ہیں اور ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے. یہ میرا موقف ہے. اب آپ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ریلیجیس جو طبقہ ہے وہ کیا چاہتا ہے یا قرآن و سنت کیا ان کو کہتی ہے؟ پتا ہے ہاں، لیکن ان کو اصل میں وہ چاہتے یہ ہے کہ ہر انسان کو فریڈم مل جائے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ پہ امن آشتی ہو اور کہیں بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ طور پر، میں پچھلے دنوں ڈاکٹر عمر سلیمان ہے ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ باقاعدہ طور پر امریکنز کا ذہن بنا دیا گیا ہے، لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے اور اس پہ سال ہا سال لگے ہیں اور لوگوں کی جو نا برین واشنگ کی گئی ہے کہ امریکہ ہی ایک سپر پاور ہے کہ جو پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے. جی دیکھیں جی کتنا شور و گل ہو رہا ہے، پاکستان انڈیا سے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، چائنا کی رشیا سے نہیں بن رہی اور منگولیا درمیان میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا اس کا فلسطین کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اسرائیل کا. تو وہ لوگوں کو صرف نا اپنی پالیسیز پھیلاتا ہے امریکہ اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ صرف دیکھیں جی ہم ہی امن کے دائی ہیں، باقی سارے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ برین واشنگ ہے تاکہ کوئی عوام الناس میں سے ریئیکشن نہ آئے ہمارے خلاف، عوام الناس کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نا لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ ڈاکٹر عمر سلیمان اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے اب دنیا بدل چکی ہے، اب خاص طور پہ جو امریکنز نوجوان ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا درست موقف نہیں ہے فلسطین کے والے 2 اسٹیٹ ایجنڈا وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی خواتین کے حقوق کا اس ایجنڈے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فورن پالیسیز جو ہیں وہ ہمارے پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، یہ جو بھی ہے. اب دیکھیں یہ مسلمہ اصول ہے کہ وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پہ جتنے پاکستان کے پاس وسائل ہیں ہم اس کو نہیں گرا سکے. 70 سال ہو گئے ہیں نہیں گرا سکے، وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ایک ہی چیز پیچھے رہ گئی ہے، ان کا اسلام، ان کا ریلیجن، جس کو یہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک یہ اس کو پکڑ لیں گے تب تک یہ ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلے جب عورت فوش ہوتی ہے نا، عورت فاحشہ بنتی ہے تو معاشرے میں سب سے پہلے بگاڑ تب آتا ہے. آپ اس کی مثال لے لیں، سیرت کی کتابوں سے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا جب غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے غالباً، تو جو ادھر کے خواتین تھیں وہ لے کر آئے تھے، خاص طور پہ ہند بنت عتبہ، وہ خواتین لائی تھی ساتھ اور انہوں نے رقص کیا اور وہاں پہ ڈانس گانا کیا. عورت کے فوش ہونے کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ہے، میں بتانے لگا ہوں. ترقی سے یہ تعلق ہے کہ جب عورت فوش ہو جائے گی تو سب سے پہلے سوسائٹی گندی ہوگی، سوسائٹی خراب ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. امریکہ میں بھی زنا عام ہونے کی وجہ سے اس زنا کو خریدنے کے لیے یا زنا کاری کرنے کے لیے پیسہ لگے گا. بارز کھلیں گے، بارز کھلیں گے، جی بارز کھلیں گے، ٹھیک ہے. بارز کھلنے کے بعد وہ سارا پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ غلط جگہ پر انویسٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پاکستانی عوام ایسی بے وقوف عوام ہے، وہ بزنس پہ، آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی سوچ ایسی ہے کہ اگر ان کا تھوڑا سا بزنس چل جائے نا تو وہ عیاشیوں پہ شروع ہو جاتے ہیں پھر، اور اتنی عیاشی وہ کر سکتے ہیں کہ عرب بہت پیچھے رہ جائیں گے ان سے.
पाकिस्तानियों की जो सोच है और जो इनकी हिस्ट्री है, अगर आप पढ़ के देखें तो ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं पाकिस्तान में या इससे पहले हैं, इनके जिनकी जितनी इनकी अयाशियां हैं ना, गोरों की अयाशियां कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। सोच है आपकी, मैं तनासुब के एतबार से कह रहा हूं कि जितना उनके पास पैसा है वो अपनी 50 से 60% वेल्थ को अयाशियों पे ही लगाते हैं। गोरा क्या करता है, वो कहता है 20% अयाशी पे लगा लो, 80% आगे बढ़ाओ इस मनी को, इस तिजारत करो, कारोबार करो। पाकिस्तानी को ये देन नहीं है, ये गंद करेंगे और उससे बढ़ के करेंगे। अमेरिका भी पीछे रह जाएगा उस गंदगी में जितना पाकिस्तान करेगा। और जब इतनी ज्यादा फहाशी और उरियानी फैल जाएगी, हर जगह बार बनेंगे, आपको पता पाकिस्तान में एक मेडिकल स्टोर चल जाए ना तो 10 पूरी लाइन में 10 मेडिकल स्टोर और खुल जाता है कि एरा चल गया तो साडा क्यों नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात? एक बार खुलेगा ना, उसके बाद लाखों बार और खुलेंगे और सारा पैसा इस चीज पे इन्वेस्ट हो जाएगा। वेल्थ जो है वो सारी जब बुराई पे लगेगी तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, मुझे ये बताएं। इंडस्ट्री नहीं लगेगी, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, हर बंदा बुराई की तरफ जा रहा होगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसीज जो है उनका कोई लेना देना नहीं, वो भाई यही तो चाहते हैं कि इनका इंस्टीट्यूट तबाह हो जाए, इनकी तालीम, इनका एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाए, इनका मुआशरा तबाह हो जाए, औरत इनकी गंदी हो जाए, ठीक है। और ये बस औरत की टांगों से बाहर ना इनका सर निकले, उधर से अगर सर निकल गया तो इनको होश आ जाएगी कि ये मुआशरे में चल क्या रहा है। देखें चले अब वो सारा जो पैसा है ना, वो सारा जब गलत जगह पे लग रहा है तो ब्यूरोक्रेसी भी मुतासर हो रही है, सियासत भी, पॉलिटिक्स सिस्टम भी सारा मुतासर हो रहा है, मजहब भी मुतासर हो रहा है, सारे का सारा गंद मच गया है। नहीं देखिए ना, अब ये जो चले ठीक है, आप ये जो अपना मौकफ पेश कर रहे हैं इसमें अब देखिए बात सुने मेरी कि अब ये देखें कि अब ये इस तरह की मेंटेलिटी, मैं पहली मतलब ये सुन रहा हूँ, ये चीज सुन रहा हूँ कि गोरा अगर है उसको अकल आ गई है, वो 20% उधर लगाएगा, 80 उधर लगाएगा। हम पाकिस्तानी है वो 80 लगाएंगे याशी में, 20 इधर लगाएंगे हैं। इसका क्या एविडेंस है आपके पास? हो सकता है यहाँ पर मलिक रियाज जैसे और भी तिजारत करने वाले निकले। यहाँ पर जितनी गुर्बत हो गई है, हर आदमी को पता है कि उसने अब आगे बढ़ना है, आगे स्टैंड लेना है। तो आप आवाम की मेंटेलिटी चेंज करें ना, आप आवाम को चेंज इसके लिए। अच्छा खैर, अब ये तो एक अलग बात होगी ना, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि औरत जो है वो जो अपने आप को मुसलमान क्लेम करती है, या तो मुस्लिम क्लेम ना करे। अगर मुस्लिम क्लेम करती है तो वो उन बाउंड्रीज से बाहर जो है ना वो ना निकले जो अल्लाह ताला ने उसके लिए की हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो औरत की इस चीज की बात नहीं कर रहे कि वो कह रही है कि मैं घर से अपने भाई बहन वगैरह या मेरे भाई और वालिद हैं उनसे मैं आजादी चाहती हूँ, या मैं जो है वो फाशी करूं तो मुझे इजाजत दी जाए, ठीक है, या मैं बाहर जो मर्जी कपड़े पहनूं। वी आर डिस्कसिंग द बेसिक वुमन राइट्स। हम बेसिक वुमन राइट्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की। यहाँ पर पाकिस्तान में औरतों को 1.3 मिलियन हमारी बच्चियां ही स्कूल से बाहर है, और जो पढ़ रही हैं, सुनते रहे, और जो पढ़ रही हैं उनको मैट्रिक के बाद छुड़वा लिया जाता है। उसके बाद आप देखें तो रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और 3000 औरतों को, इस्लामाबाद की रिपोर्ट बता रहा हूँ डॉन न्यूज की, पिछले साल की, 3000 औरतों को कत्ल कर दिया गया रेप करने के बाद, 10,000 को जिंदा छोड़ा कि रेप करके चलो ठीक है अब तुम चली जाओ। 13,000 के रेप हुए इस्लामाबाद में सिर्फ, और कराची में आप देख ले तो हंगामा उठा हुआ है। पूरे पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान का तो फिर बेड़ा ही गर्क है। तो माय क्वेश्चन इज दैट, अब मैं ये नहीं कह रहा, मुझे पता है कि इस्लाम इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं, इसको इस्लाम का तो इससे लेना देना ही नहीं है ना। माय क्वेश्चन इज दैट कि जो यहाँ इस्लाम के कस्टोडियन बने फिरते हैं ना, अपने आप को इस्लाम के कस्टोडियन कहते हैं, ये उलमा और ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड सो ऑन, जितने भी सारे हैं, इनकी सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है कि औरत मार्च में पकड़ी हुई जो फहाशी है ना, हमने उसको जो है ना वो करना है, कंडेम करना है, जो कि प्राइमरी चीज नहीं, सेकेंडरी चीज है। इस्लाम में जालिम के गले में हाथ डालना प्राइमरी चीज है, ये आपको पता है कि इस्लाम में जो जालिम है उसी गले में हाथ डालोगे। लेकिन हम जालिम के गले में हाथ डालने के बजाय क्या कर रहे हैं, हम सेकेंडरी चीज के पीछे भाग रहे हैं कि जो औरत मार्च में जो वो फहाशी हो रही है ना, वो प्ले कार्ड्स पकड़े हुए हैं कि लोग में बैठ गई ऐसे, वो बड़ी गलत चीज है। ठीक है, अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि ये जो उलमा, ये जो इतना सीखपा हो जाते हैं और ये कुरान जलने और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के पीछे ये मॉब इकट्ठा कर लेते हैं और जो है वो ऐसी की तैसी कर देते हैं एक बेचारी इंडिविजुअल एक आदमी की, इनकी गैरत और इनका इस्लाम तब कहाँ जाता है कि जब एक औरत को खुद देखते हैं कि यहाँ पर बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे जो इस्लाम ही देता है। पहली बात तो ये है कि जो जलाते हैं, जो मारते हैं, जो कत्ल करते हैं, वो उलमा नहीं होते, ये बात ज़हन में रखें। और मैं यहाँ पर नाम देना चाहता, वो उलमा ही हैं, ये टीएलबी के उलमा नहीं होते क्या? वो यही मैं बात करने लगा हूँ, वो एक खास तबका है कि जिनका ये एजेंडा बन चुका है, वो एक खास तबका है, और आप उस खास तबके को लेके सिर्फ ये राय कायम नहीं कर सकते कि पूरे पाकिस्तान के उलमा ऐसा क्या। अच्छा, ये जो पिछले दिनों रेप का केस मिला है और अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब वो पहुंच गया फौरन वहां पर, उसको जो है वो अल्लामा इब्तिसाम साहब हैं या दूसरे उनके भाई हैं बड़े, वो पहुंच गए वहां पर बच्चे को उस आलिम साहब को बचाने।
اور वहां पर बैठ के खुद ही उन्होंने अपनी एक पंचायत खोल ली वहां पर, हालांकि यहाँ पर एक जुडिशरी सिस्टम है पूरा, एक पूरा लॉ है यहाँ पर, बजाय उसको कानून की तरफ लेके जाने के उन्होंने उधर ही बैठ के सुलह करा ली। वो कौन होते सुलह कराने वाले? तो कितने लॉ पास किए तो जाते हैं, कितने को मसाइल लेके जाए जाते हैं आपकी जो जुडिशरी के पास, कितने के क्यों नहीं लेके लेके जाए? जाया जाता? ये तो सवाल है। तो ये तो मेरा आपसे सवाल बनता है फिर, मेरे से ये तो कैसे मेरा सवाल? सवाल बनता है आपसे। मेरे से कैसे सवाल बन मैं गया? आपको मैं आपसे क्वेश्चन मैं ये कर रहा आपको हूँ कि मैं एक अवाम मिनट को एक मिनट तबलीग उलमा ने एक करनी है, मिनट और एक मिनट उलमा ने ही कंडेम, उलमा एक ने मिनट फ्रंट में लीड करना है, अवाम ने पीछे होना है। ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने सारी जिम्मेदारी डाल दी है उलमा के ऊपर, सिर्फ उलमा पे तो नहीं, यूनिवर्सिटियों वाले झग मारने बैठे हुए हैं उधर, मैं उनकी यूनिवर्सिटी में बात साथ तालीम की है, देने नहीं बैठे हुए, मैंने उनकी साथ बात की जो है। लिबरलिज्म सही वो मैं सेकुलरिज्म पढ़ा मुस्लिम रहे लेक्चर की हैं, बात कर रहा हूँ ना। जो लिबरलिज्म सेकुलरिज्म पढ़ा रहे हैं उधर, जी जी, वो उधर क्या करने बैठे हुए हैं? सिर्फ उलमा पे जिम्मेदारी डाल दी, उलमा ने ठेका लिए हुए सारी वो उम्मत तो का, कहते सारी हैं कि कौम का। वो तो कहते हैं कि हम तो मार्च कर रहे हैं अपने कौन कह रहे हैं? अपने नजरिए के मुताबिक मार्च कर रहे हैं हम तो, औरत मार्च में निकलते यही मौलवी हमें अपोज करते हैं। चलें ठीक है, मौलवी जो जुमा पढ़ाते हैं इधर हुकूक निस्वां पर जी जी, 3-3 लेक्चर देते हैं, वो नहीं किसी को नजर आते? 25-25 हजार बंदा एक मस्जिद हकूक में जुमा निस्वां पढ़ पर रहा आप होता मेरी है। यही तो बात मैं कर रहा हकूक हूँ, निस्वां यही तो बेसिक बात, वही चीज है, वही जो आपने सवाल किया कि हकूक निस्वां है क्या, ठीक है ना? ये बता देना काफी है। हाँ वो बता देना, अब सबको पता है हकूक निस्वां क्या है, एजुकेशन सिस्टम है औरत का, ठीक है। आप अगर मुझे आप बताएं कि औरत गुस्ताखे सहाबा का बिल के लिए बरेलवी निकले थे? नहीं, देवबंद जमात निकली, और वो अपना निकले ये अहले हदीस जमात, शायद बरेलवी भी हो अंदर, लेकिन इन दोनों जमातों ने ही लीड किया है ये जो गुस्ताखे सहाबा का बिल पास हुआ है। अभी नहीं पास, पास तो नहीं हुआ, लेकिन निकले तो थे ना, अपनी टिल तो लगाई ना पूरी ठीक उन्होंने। है। आप मुझे बताएं। आप ये कहते हैं कि हकूक निस्वां के लिए क्यों नहीं निकलते, जी ये हाँ, बात जो कर मेन रहे हैं। मसला है, अच्छा अब बात गुस्ताखे सुने, सहाबा का जो अब मसला बात है, सुने, बात सुने उससे बात बड़ा मसला ये है। ठीक है, मान लिया उससे बड़ा मसला ये है, हालांकि उससे बड़ा मसला है नहीं है। कैसे? क्योंकि गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे रसूल का मसला जो है ना, वो आइली जिंदगी के मसाइल से ज्यादा अहम है, क्योंकि वो अकीदे का मसला है, ये आइली जिंदगी का मसला है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकीदे रही का सवाल बात, है कि राम को कोई बंदा काफिर कहता है तो क्या काफिर कहता है वो? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो काफिर हो जाता है या नहीं होता, ये अगर एक कोई उलमा काफिर का नहीं मसला था, है, ये बस उलमा हजरत का मेरे मसला है मुआविया कि पर वो हल्का बताएंगे फुल्का, कि है या नहीं है। हजरत मेरे मुआविया पर हल्का फुल्का तबर्रा कर देते हैं वो, या हल्की फुल्की उन पे तनकीद कर देते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की जो ज्यादा भी कर देते हैं, तो क्या उससे वो काफिर कहते हैं? नहीं। अब उनके बारे में लेजिस्लेशन होनी चाहिए, मान लिया, लेकिन इस गुस्ताखे वक्त रसूल की बात करें ना, अभी इस्लामिक आप सिस्टम जब गुस्ताखे आएगा, रसूल की बात तब कर रहे हैं। इस्लामिक, मैं गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे सहाबा की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात। हाँ, तो दोनों में तो फर्क है ना, दोनों गुस्ताखे में फर्क है, सहाबा पे तो काफिर नहीं होता, चलो ठीक है आपकी बात मान जी लेते, जी, गुस्ताखे रसूल पे तो लेकिन काफिर हो गया लेकिन ना। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ ना, वो देवबंद और अहले हदीस जिस बात के लिए निकले हैं, वो गुस्ताखे रसूल नहीं, गुस्ताखे सहाबा का बिल है। गुस्ताखे रसूल के लिए सिर्फ बरेलवी निकलते हैं। अभी आपने ये कहा तो बात है गुस्ताखे कि इन रसूल का सब बिल फिरकों था, ने अपने अब चंद चंद चीजें हैं ना अभी आपने यूज कहा ले ली हैं। गुस्ताखे रसूल का बिल था वो, जिसके गुस्ताखे लिए सहाबा अहले बोला हदीस मैंने, आप यही रिकॉर्डिंग पीछे कर लीजिएगा, मैं चले गुस्ताखे सहाबा चले बोला है। ठीक है चले। गुस्ताखे रसूल का जो बिल है ना, उसके लिए तो फैजाबाद में पहुंचे हैं अपना खादम सनदी साहब, ठीक है। खाके क्यों बने हैं फ्रांस के अंदर। तो गुस्ताखी, ये तो आप लोगों ने इन फिरकों ने गोद लिए है ना, एक चंद चंद मसाइल के, ठीक हो गया। गुस्ताखे रसूल के लिए उससे निकलना है, गुस्ताखे सहाबा के लिए इन्होंने सिपा सहाबा किनकी बनी है? देवबंद की बनी है, ठीक है। तो और आप ये कहना चाह रहे हैं यजीद की जो है वो डिफेंड कौन करते हैं? अहले हदीस करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं अहले हदीस नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। अहले हदीस में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करते हैं, कुछ अपने दलाइल की, तारीखी दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन आप कुल्लियतन अहले हदीस पर ये टैग नहीं लगा सकते कि वो सारे यजीदी हैं, चलिए, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अहले हदीस उलमा ने जिन्होंने यजीद की हिमायत की, अहले हदीस उलमा ने उनकी मंजी ठोकी है कि आपने ये बात गलत की है, बाकायदा तौर पर उनके साथ डिबेट हुई और वो मसाइल बिल्कुल वाज़ेह हो गए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि हकूक निस्वां का मसला गुस्ताखे रसूल से भी ज्यादा बड़ा है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। अकायद और आइली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अब अगली बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि हकूक निस्वां का मसला कोई छोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है भाई, लेकिन इस्लामिक सिस्टम जब तक इम्पोज नहीं होता तब तक, उससे पहले अगर हम देखेंगे ना कि आपने पहले गुस्ताखे सहाबा का बिल या गुस्ताखे रसूल का बिल पास करना चाहेंगे या फिर हकूक निस्वां का, तो इस वक्त आपके नजदीक क्या इंपॉर्टेंट होगा? हकूक निस्वां का। वो लिविंग बीइंग है, वो जिंदा सांस ले रहे हैं, उनकी हकूक मारे जा रहे हैं, उनको जिंदा ठीक है मार देते हैं। आप वाकई नहीं सुना आपने, रेप करके भाई ने अपनी बहन का रेप करके उसको मारा है, हाँ जी, और वालिद ने उसको पानी पकड़ाया। तो इस्लाम कब कहता है कि भाई इसकी परिणाम पकड़ के गुस्ताखे सहाबा को चाटते हैं? इस्लाम कब कहता है कि इसकी सरजनश ना करो? इस्लाम तो कहता है उसको फटे लगाओ। हजरत देखिए ना, मैं और आप एक बात से पहले एग्री करें कि इस्लाम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे क्वेश्चन की बेस समझे, अगर उलमा गलत है तो आप कहें ना कि हाँ यहाँ इस पॉइंट पे गलत है, वो इस पॉइंट पर उलमा को लीड करना चाहिए। उलमा हमारी यही सारे मसाइल पर लीड यही करते हैं। बात, चले ठीक है, आपकी बात मान ली कि हकूक निस्वां का मसला बहुत बड़ा है, उलमा को चाहिए कि उनको लीड करना चाहिए, ठीक है। उलमा को आप पाकिस्तान का सबसे बदतरीन, कभी और नीच तबका समझते हैं, ठीक है। हर बात होती है तो उलमा पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। हर बात होती है तो उलमा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी पूरी बात होने दें ना, पूरी बात होने दें। आप ये ठीक है। समझते हैं कि उलमा ने पूरे पाकिस्तान का ठेका उठाया हुआ है, जब कोई मसला होगा तो मौलवी की उलमा ने मंडी इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है, मौलवी सही की है। मंडी ठोकनी है।
तो भाई इस्लाम का अगर ठेका उठाया हो ना तो मौलवी को पहले जाके प्राइम मिनिस्टर बनाओ, समझ रहे हैं ना, लिबरल को ना बनाओ, सेकुलर को ना बनाओ जिसका दिमाग खराब है, जो बाहर से पढ़ के आया। अगर आपने इस्लाम इंप्लीमेंट करना है तो फिर मौलवी को जाकर जब मौलवी मस्जिद में बैठा रहेगा तो मौलवी को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया? वो इलेक्शन जब में मौलवी जमात इस्लामी की शक्ल में आगे जाता है तो पीटीआई कहती है हम आपके साथ नहीं चल सकते, उधर क्या करें? जमात इस्लामी आगे जाती है, जेयूआई आगे जाती है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि उनके बड़े जो है वो करप्शन करते हैं, लेकिन बाकी तो है ना यार, उनको तो आजमा लो। जमात इस्लामी के उलमा कितने लियाकत बलोच बैठा हुआ, आज तक कोई उसको सीट दी है उन्होंने? आगे निकलने दिया है? जब आगे निकलने लगते हैं आपकी फौरन पुलिस आके उधर आके अटैक करना शुरू कर देते, तो मौलवी आगे ना आए, मौलवी आगे आ गया तो इधर इस्लाम आ जाएगा, इस्लाम आ गया तो हम मारे गए। ये मसला है। देखें, अगर हुकूक निस्मा की बात, मौलवी अफगानिस्तान में भी आया था, मौलवी अफगानिस्तान में भी आया था, ठीक है, और उसे मौलवी ने जैसे अफगानिस्तान में आया ना तो वो आकर उसने वुमेन एजुकेशन की मांग है कर दी। हम उसको कहते हैं कि ये गलत है, हमने कब कहा कि वो ठीक किया उसने? इस्लाम कभी भी हुकूक निस्वा को और इस्लामिक सिस्टम जो है ना वो कभी भी एजुकेशन सिस्टम पे ये नहीं कहता कि आप खवातीन को तालीम ना दो। आप जानते हैं कि सहाबियात आके हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से तालीम लेती थी। ये वो मसला ये है कि जब आपका मौलवी मुफ्ती अदनान काका खेल ने वो लगाई थी ना फिर क्लास मुशर्रफ की, ठीक है, जब बात होती है वहां पे जाके कोई मौलवी उठ के बात करता है तो 4 दिन वो कहते हैं यार बल्ले बल्ले बल्ले, एक मौलवी आया था उसने तो धूड़ निकाल दी है उस बंदे की फलाने की। लेकिन 2-3 दिन गुजरते हैं, 1 मिनट, 2-3 दिन गुजरते हैं, उसी मौलवी को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेकुलर्स और लिबरल्स उठते हैं कि ये मौलवी इधर असेंबली में क्यों आ गए? अगर मौलवी से हट रहे हैं ना, अगर मौलवी अगर नहीं की बात करे, वो तो आपको भी पता है और मुझे पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो ऊपर बैठी हुई है और जो हम पे काबिज लोग हैं वो मौलवी तो दूर की बात है, वो पीटीआई को नहीं आगे आने दे रहे, ठीक है, वो ऐसे लोग आगे नहीं आने दे रहे। ये बात मान ली है कि मौलवी बेचारे मजबूर हो गए, मजबूर हो गए हैं, मजबूर तो पूरा पाकिस्तान है, मजबूर तो पूरा पाकिस्तान है। मैं जब बात कर रहा हूँ ना आपसे, आपके सेकुलर्स और लिबरल्स तो नहीं मजबूर। अच्छा आप बता दें कौन सी सेकुलर लिबरल जमात ने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर? जितनी जमातें, एक मिनट, ज़हनियत तो है कि नहीं है? देखिए ना, ज़हनियत तो इस्लामी भी है, ज़ियाउल की ज़हनियत इस्लामिक नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा वो तो फिर क्या नाम है, जुबान से कह देना क्या ज़हनियत इस्लामी हो जाती है? वो भी कहते हैं जुबान से कह दिया देना, कौन कहता है? लिबरल सेकुलर। तो अमल देख रहे हैं ना हम, अमल तो देख रहे हैं ना। देखिए ना लिबरल से लिबरल हम चले जाएंगे, अभी इस टॉपिक को अगर हम ऐसे ही करी ऑन किया ना तो हम लिबरल और सेकुलरिज्म में चले जाएंगे। हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि जो उलमा का तबका है, चलिए ठीक है, ऊपर हमारी एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, पावर सेक्टर बैठा हुआ है, हम नहीं आगे आ सकते उनकी मर्जी के बगैर, एक पूरी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इंकलाब लाना पड़ेगा। लेकिन उलमा इतना तो कर सकते हैं ना कि प्रेशर डाले पार्लियामेंट पे, इकट्ठे हों, आवाम को बाहर निकालने, पता चले वो पूरी हुकूमत को कि यार बहुत बड़ा मसला है कोई। जैसे बाहर निकलने के बाद लेजिस्लेशन होगी और उलमा के बाहर निकलने के बाद यकीन हमारे उलमा तो यहाँ बता रहे होते हैं, अच्छा ये हदीस उनको जरूर याद है कि जो शोहर है वो बजासी खुदा है और औरत जो है वो, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये हदीस जरूर याद है उनको कि जो है वो औरत जो अगर मर्द की जो है वो अगर नफसानी ख्वाहिश को पूरा ना करे तो उसमें सारी रात लानतें बरसती हैं। लेकिन उनको यहाँ पर रेप होते हुए नजर नहीं आ रहे, वो मसाइल ना डिस्कस होते हैं, अगर डिस्कस होते भी हैं तो उनके लिए निकला जाता है बात लेजिस्लेशन कराने के बारे में। क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है कि अगर उलमा हुकूक निस्वा पर एक रैली निकालते हैं, एक मजलिस कायम करते हैं या एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इस एजेंडे पर उलमा के साथ अवाम खड़ी होगी? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, राहजन आएंगे, ठीक है, राहजन आएंगे, अवाम और लुटेंगे भी, अवाम आए ना, मुझे तेरी राहबरी का सवाल है कि तू राहबर था, तेरा काम था निकलना, इमाम हुसैन करबला में गए। ठीक है, अब मेरी बात सुने। जब आप, पहली बात तो यह है कि उलमा लिटरेचर के जरिए से, अपनी जुबान के जरिए से हुकूक निस्वा के बारे में हत्तुल इम्कान जहां तक कोशिश हो रही है, आप रसाइल और जराइद निकाल के देखें, किताबें की किताबें लिखी पड़ी हैं हुकूक निस्वा पे, ठीक है, वो किन्होंने लिखी है? वो लिबरल्स और सेकुलर्स ने लिखी, उलमा ने लिखी है। बात पूरी हो लेने देना, बात पूरी हो लेने देना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी उसी बात पे आऊंगा, मैं बेस बना रहा हूँ ना, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जी। वो जो किताबें लिखी हैं वो किन्होंने लिखी हैं? लिबरल्स और सेकुलर्स ने नहीं लिखी, वो उलमा ने लिखी हैं, हुकूक निस्वा के बारे में वो सारी चीजें बताएंगे। दूसरी बात ये कि उलमा अपनी मजालिस में बाकायदा तौर पे, जब भी जामिया बनोरिया में या दीगर कराची के जितने इदारे हैं, लाहौर में, इन मौजूआत पे बाकायदा तौर पर डिबेट्स होती हैं, पढ़ाया जाता है, हर चीज होती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके मदारिस में या उनके इंस्टीट्यूट्स में इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता, इसके बारे में सोचा नहीं जाता, ये बिल्कुल झूठ है, सब कुछ होता है। दूसरी बात यह है कि जब उलमा बाहर निकलते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि आप राहबर थे, आपको राहबर होना चाहिए था, मुझे गिला ये है कि आपकी राहबरी किधर गई है, ठीक है। तो अगर राहबर थे तो आप 3 दिन मुझे उलमा की एक मजलिस कायम करें और उधर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो, बड़े बड़े उलमा हो, वो बैठ के उधर 3 दिन मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो ना वो धरना दे लें, डी चौक में दें, जहां भी दें, ठीक है, जहां भी दें,
अब मुअज़्ज़ज़ उलमा या जो भी है वो जाके उधर डी चौक पे देते हैं, तो आपकी उधर एजेंसियां आ जाती हैं, जैसे ये अभी सेनेटर मुश्ताक जो उधर डी चौक में धरना दे के क्या नतीजा निकला, वो नतीजा निकला देखिए उससे हुकूक निस्मा के से 100 गुना ज्यादा पोटेंशियल इस एजेंडे में था फलस्तीन वाले में। हर बंदे का दिल दुखा हुआ है, कई लिबरल्स और कई सेकुलर्स का दिल दुखा हुआ है, बात ठीक पता है क्या है? मेरी बात पूरी होने बात दें। पता क्या है? सेकुलर्स और लिबरल्स जिस पोटेंशियल के साथ इस एजेंडे के साथ है ना, रिलीजियस तबका भी उसी पोटेंशियल के साथ साथ, लेकिन हुकूक निस्वा में 100 इख्तलाफात हो सकते हैं। जब उलमा वहां जाके डी चौक में धरना देंगे ना, तो टक्के का भी कोई रिएक्शन नहीं होना और डंडे मार के उनको वापस भेजा जाएगा, कोई नतीजा नहीं निकलना, 0% नतीजा इस बात का। देखिए लेजिस्लेशन के अंदर ना फलस्तीन का मसला लिखा नहीं हुआ, लेजिस्लेशन के अंदर फलस्तीन का मसला नहीं लिखा आप हुआ। बात को समझ नहीं रहे। लेजिस्लेशन में ये जरूर लिखा हुआ है कि हर हाँ जी ठीक है, आपकी लेजिस्लेशन हुई हुई है, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, जुडिशरी के पास जाना है, वहां पर प्रेशर क्रिएट करना है। तो क्या आपकी जिसमें लेजिस्लेशन पहले से हुई हुई जो कानून है पाकिस्तान का, ठीक है, उसके लिए भी एजेंसियां आपके ऊपर आपको चढ़ जाएंगी? जाहिर बात है चढ़ती हैं, क्यों नहीं चढ़ती। चलो एक बात आपकी ये ले लेते हैं कि आप कहते हैं कि उलमा कोशिश करते हैं या कोशिश ही नहीं करते, पहली बात। एजेंसियों का इससे कोई सरोकार नहीं है। एक मिनट हाँ जी, आपको ये मैं तो मेरा एक मिनट रुक जाए। आप कह रहे हैं एजेंसियों का इससे कोई लेना देना नहीं, लेना देना है भाई, बहुत गहरा लेना देना है। उसकी वजह यह है कि आप ये कहते हैं कि उलमा जो है वो राहबर थे और उलमा कभी भी कोशिश ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इतने लंबे जो बिल असम्बलियों में जाके सूद के खिलाफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और उनके हवारीयीन ने पेश किए हैं, पेश करने के बाद जब आगे से आर्मी को ये पता चला कि अगर सूदी कारोबार बंद हो गया तो हमारी तो कंपनियां खुडे लाइन लग जाएंगी, हमारी फौजी फर्टिलाइजर बंद हो जाएगी और बैंकों आधे आधे बैंक उन्होंने खरीदे हुए फौजियों ने। आप कहते हैं एजेंसियों को लेना देना नहीं है सूद के साथ, ठीक है, या इन सूद का जो मामला है ये आपकी लेजिस्लेशन में नहीं लिखा हुआ, इतना मोटा करके सूद का लिखा हुआ है कि सूद हराम है, तो वो नहीं चल रहा आपका। एजेंसियों का डायरेक्ट लेना देना उनके साथ। अब उलमा ने इतना लंबा बिल पेश किया तो सारे पड़ गए मौलवियों को, वो ये क्या कर दिया इन्होंने, सूद खत्म कर दिया मौलवियों ने, तो हम तो डूब जाएंगे। चलिए गुड पॉइंट, ठीक है, गुड पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट लगा कि सूद की तो लिखा हुआ है यही मसला हुकूक निस्वा का है, सेम सिचुएशन हुकूक निस्वा के साथ है। ठीक है। हुकूक अच्छा निस्वा भी लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम बात सूद करते के लिए हैं आए हुकूक निस्वा के लिए आए, किसके लिए, जो मेन इंपॉर्टेंट इस वक्त का मसला है पाकिस्तान का, सबसे अगर बड़ा मसला है तो हुकूक निस्वा का है। हकूक निस्वा से बड़ा सूद का मसला मैं साबित कर सकता हूँ। उसकी वजह एक मिनट मैंने कहा उसके लिए तो निकला है बात। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हुकूक निस्वा के लिए क्यों निकले? क्यों नहीं निकलते हैं। अगर आप चांस देते हैं, इन मिसाल के तौर पर एक बंदा अक्लमंद है, उसको पता है कि मैंने इससे बड़े मसले पर कोशिश की, वो हल नहीं हुआ, फिर उससे भी बड़े मसले पर कोशिश की, वो भी हल नहीं हुआ, तो छोटा मसला हल हो। मैं यहाँ पर सिर्फ ये आप ये उलमा को नहीं चाहते रगड़ हैं रहा, कि मैं सिर्फ यहाँ आप पर ये उन चाहते तमाम हैं इंटेलेक्चुअल्स को रगड़ रहा हूँ कि जिनको सिर्फ और सिर्फ औरत मार्च में पकड़े हुए प्ले कार्ड नजर आते हैं, जी। लेकिन उनको औरत के हकूक भाई के लिए जद्दोजहद करना नजर हमारे आता है। हाथ एजेंसीज ने बांधे हुए हैं, ना आप हुकूक निस्वा पे बात कर सकते हो, ना सूद पे बात कर सकते हो। तो फिर इनकलाब क्या कराना है? रही बात फिर इनकलाब, इनकलाब अब जब- बात सुने, अच्छा अच्छा, बात सुने आप। ये आप कहते हैं कि इनकलाब, इनकलाब क्या है, उलमा क्यों नहीं निकलते इनकलाब के लिए, इनकलाब के ठीक लिए है ना, हुकूक निस्वा का निकला है। हकूक निस्वा के लिए इनकलाब निकलते। जब आ जाएगा मैं यही मुझे बात माना कह रहा होगा। हूँ कि हुकूक निस्वा के अलावा बड़े बड़े एजेंडों के लिए उलमा ने जब असम्बलियों में पहुंचे हैं, असम्बलियों में पहुंचने के बाद उनकी बात नहीं सुनी गई, वो मायूस होकर वापस आ गए, ठीक है। अब आपका ये पॉइंट है कि भाई वो लड़ते क्यों नहीं रियासत के खिलाफ। आपका क्या ख्याल है कि उलमा को क्या चाहिए कि अपने मदारिस के तलबा को निकालें, कलाशनकोफ दे के और हुकूमत पे चला दें, और अब इसका यही हल रह गया ना, इसके पीछे क्या है, मैंने तो ये बात ही नहीं की। आप देखे ना अपने लुकमा में आपने- मुंह डाल आपने रहे ये- हैं, एक आप अपना मिनट, लुकमा मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं तो ये बात ही नहीं की अच्छा, चले, आपने क्या बात- क्लैशन को निकाल लें। आपने ये मैं बात तो की डी है चौक में जाके धरना देने की हाँ, बात की ये है। तो मैं कह रहा हूँ, डी चौक पे जब फलस्तीन के मसले में धरना दे दिया गया है, सूद के मसले में धरने दे दिए गए हैं, सूद के मसले में लेजिस्लेशन को जो है ना वो चैलेंज कर दिया गया है, हर काम कर लिया। चले, आप आपने कहते हैं हमारे हाथ बंधे बात हैं। पूरे करने दें। अच्छा, आपने ये कहा कि प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे, और भाई प्रेशर और कैसे डालते हैं, तो प्रेशर कुकर ला के डाल दें अब उसके ऊपर। प्रेशर ऐसे ही डाला जाता है ना, उलमा बैठते हैं और मजलिस कायम करते हैं और बाकायदा उनको कहते हैं, जाके बिल पास करवाते हैं, बोलते हैं असेंबली में जाकर, और प्रेशर किस चीज का नाम है? अगर आपके अगर जालिम के गले में हाथ नहीं ना डाला जाता, फिर आप लोगों को कोई हक नहीं मुझ समेत भी। मैं भी तो मुस्लिम ही हूँ और मैं इस्लामिक सिस्टम को सपोर्ट करने वाला हूँ। हमें कोई हक नहीं है फिर कि हम औरत मार्च में होने वाली पार्टियों को कंडेम करें। अच्छा, एक मिनट, आपके अकॉर्डिंग अगर उलमा इस हद तक हुकूमत को प्रेशराइज करते हैं, वो नहीं होती, ठीक है, उलमा किल मार चुके हैं, ठीक है, अपना हर हवाले से, हुकूक निस्वा के हवाले से या जो भी है, नहीं ठीक है? किया, उसने मैं किया। मिसाल दे रहा हूँ ना, सूद के हवाले से चले ले लें, ठीक है, एक उससे बड़ा मसला है, ठीक है, उस पर जब उन्होंने हर हद्दुल इम्कान कोशिश कर ली, हद्दुल इम्कान कोशिश करने के बाद उनको उनकी बात ना तस्लीम की, प्रेशराइज भी कर लिया, हत्तुल इम्कान कोशिश नहीं किया। प्रेशराइज किया गया, बहुत अगर ज्यादा हत्तुल किया। इम्कान कोशिश की होती ना, तो हत्तुल इम्कान कोशिश हुई है गुस्ताखी रसूल को
मॉब के जरिए घेर कर मारने में हाँ, तो फिर यही बाकी रह गया वहाँ कि पर सूद पूरा के मामले पूरी में कि हम नदी कत्ल उड़ाई कर जाती दें है, सारों को। पूरी नदी उड़ाई नहीं जाती आप ये है। चाहते हैं कि सूद के मसले में हम सारों को बाहर निकाल के कत्ल कर दें? आप मुझे बात बताएं, नहीं एक मिनट, लेकिन मैं इस आपको बात सवाल का जवाब देना, पहले इस बात का जवाब दें। पहले आप अगली बार ना करें, पहले पिछली बार का जवाब दें। आपका ये मतलब है कि अगर जैसे मॉब कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है, हम इसको कहते हैं नहीं करना चाहिए था, ये रियासत का मसला है, ठीक है ना, रियासत उसको उसका मसला निकालती है। पता चलेगा ना जीरो टॉलरेंस है आपकी। हाँ ठीक है, यहाँ भी जीरो टॉलरेंस हो रहा अब देखे ना आपका क्या, मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने आपकी कत्लबारी करने जब तक आप मेरा जवाब नहीं देते हैं। जवाब मेरा आपने ये देना है कि आपको मैंने ये बात कही है कि जब सूद के मसले में बिल पास कर दिए, पेश कर दिए, सब कुछ हो गया, ठीक है, हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ये काम नहीं होना चाहिए, प्रेशराइज भी कर दिया, ठीक है, फतवे भी जारी कर दिए, अब इससे ज्यादा सूद के बारे में प्रेशराइज कर दिया, नहीं मानेगी, सारा कुछ कर लिया, अब इसके बाद क्या हल है? बंदा मारना, कत्ल करना ही हल है, जैसे उन्होंने कत्ल कर दिया। हाँ, करें करें, आप बताएं उनको कि हमारा इस पर जीरो टॉलरेंस है। बता तो चुके हैं भाई सूद के बारे में, और आप सुन तो लेना। अब देखें, आप मुझे बताएं किसी ब्रिगेडियर, किसी कर्नल, किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे, किसी भी जुडिशरी के बंदे की हिम्मत होगी इस बात इस कदम लेने की, किसी भी क्या ब्यूरोक्रेसी के बंदे की हिम्मत होगी कि वो अल्लाह की नबी की गुस्ताखी कर दे? मैं ये बात जीरो टॉलरेंस के बारे में हमारी। हाँ जी, उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मारे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मारे जाते, आप निकले तो सही। पहले मैं बात की कि राह सबको से गिला नहीं थी, का सवाल है इतना से निकले भाई, जब आगे सुनिए, हमारा मौजूद सूद नहीं है हजरत, हमारा मौजूद चल रहा है इसमा ही है, लेकिन उसके अलावा एक और बड़े मसले पर जब नहीं सुनी गई, एक और बात इसमा पे कैसे सुनी जाएगी भाई? मेरी बात सुने, एक और बात, क्योंकि निस्मा के मसले पे सो इख्तिलाफात सेकुलर्स और लिबरल्स पैदा कर देते हैं। सूद के मसले में सेकुलर्स और लिबरल्स सोए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिस्ट तबका उठ के खड़ा होता है, लिबरल्स और सेकुलर्स नहीं होते मध्य मुकाबल। जब इकोनॉमिस्ट तबके के खिलाफ जो उलमा है वो नहीं जीत सकते या उनको रोक दिया जाता है, तो लिबरल्स और सेकुलर्स तो उसके पीछे फंडिंग है पूरी, उनके साथ कैसे? क्योंकि निस्मा के मसले में जब तक हुकूमत की मतहती नहीं होगी।